This is electrical recording our heart activity, right? This is nothing. This is electrical recording of our heart activity. And you people know that in our heart there are muscles that are myocardial muscles, right? So first of all, we will try to understand that what is happening in myocardial muscle, right? See, this is ventricular myocardial cells, right? This is ventricular myocardial cells. This is one cell. So see, here the stimulus is coming. The stimulus means what? It is a form of somewhat positive charge. This is form of somewhat positive charge like cations, sodium ions, right? So the stimulus is coming, and one thing also remember that resting membrane potential of myocardial muscle is minus 90 millivolt. So see here, this is minus 90 millivolt here, minus 90 millivolt, right? So when stimulus is coming, so what is happening that some sodium charge coming inside, पॉजिटिव चार्ज भीतर आता है, और जब पॉजिटिव चार्ज भीतर आएगा तो क्या होगा, इसके भीतर रेस्टिंग पोटेंशियल जो माइनस 90 था वो बढ़ेगा. यस सर. सो वो बढ़ेगा तो देखो ये बढ़ेगा माइनस 90 बढ़ेगा, राइट. और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका जो है ये माइनस 70 मिलीवोल्ट पर अगर ये पहुंच जाता है, राइट. ये अगर एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचता है तो हियर देयर आर सम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. सो हियर सी दैट देयर आर सम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हियर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. सो एट दिस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल voltage gated sodium channel will open and more sodium is coming inside, right. When more sodium is coming inside, then what will happen? See here, right? It will reach around plus 10 millivolt, right? Plus 10 millivolt. So this process is known as depolarization. There are also some other channels, like here there are potassium channels, right? There are potassium channels. Also there are here calcium channels. Remember there are here calcium channels. So what is happening? See here, outside says sodium concentration is more. That's why sodium is coming inside, right? And it reached to plus 10 millivolt. Meanwhile, what is happening that? See here, this potassium channel, that voltage gated potassium channel also open by little delay. So it will open and more potassium is going outside, right? But remember, there are also here voltage gated calcium channel. So outside calcium concentration is more. So calcium is coming inside. Calcium is coming inside. अब तुम देखोगे तो यहाँ पोटेशियम जा रहा है, कैल्शियम आ रहा है, वाइसी वर्सा बराबर हो जाता है लगभग. So see that this graph is like this, right? This graph is like this, and then remember ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल लॉन्गर नहीं रहता है, जबकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल लॉन्गर रहता है. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, दिस विल बी लाइक दिस. सो अगेन इट विल कम टू द resting potential. So this is happening in myocardial cell. And see,
There are gap junction here. There are gap junction. So what is happening? That sodium is going inside. in this direction, and same way, what is happening? That same way, the current will pass to all cells, myocardial cells. Understood or not understood? Yes, sir. अच्छा, अब कुछ चीजें और समझने वाली है जो आपको समझना चाहिए। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स है, राइट। जब भी ये वेंट्रिकुलर टिश्यू को कट करके हमने यहाँ रख लिया, और इसमें क्या होता है, बहुत सारा वेंट्रिकुलर सेल्स है, ये सेल्स है। This each cell will so because minus 90 millivolt, मतलब क्या हुआ, हीटर में निगेटिव चार्ज ज्यादा है। सो इसको तुम ऐसे दिखा सकते हो, इसको तुम ऐसे दिखला सकते हो। अब इसको अगर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाए, ये मान लो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, राइट, गैल्वेनोमीटर है, ये पॉइंट ए को यहाँ जोड़ दिया जाए और पॉइंट बी को यहाँ जोड़ दिया, राइट, पॉइंट ए को यहाँ जोड़ दिया जाए, पॉइंट बी को वहाँ जोड़ दिया, और बेटा सपोज दैट ए जो है, ए यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, और ये जो है बी जो है ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज हो गया, ए एंड बी, राइट। अगर डीपोलराइज होगा तो व्हाट विल हैपन दैट, तो ये कन्वर्ट कहाँ होगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, और इसका मूवमेंट किस साइड होगा, इस साइड, Yes, sir. राइट। तो देयर ये मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू दिस साइड, राइट। सी, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, समझने की कोशिश करो। सो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। अगर लेट अस सपोज दैट दिस गैल्वेनोमीटर, this is galvanometer, right? So it will deflect in this side, but positive side, this side positive, this side negative होता है, so deflection will be toward the positive side. Try to understand the concept, what I want to convey. Here, this is myocardial cells, these are myocardial cells, right? Negative charge, galvanometer को लिया, इधर negative, इधर positive, यहाँ आपने स्टिमुलस दिया, जो अभी पिछले इसमें मैंने बताया, यहाँ पर अगर आपने स्टिमुलस दिया तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, मतलब डीपोलराइजेशन जो है वो मूव करता है। दिस इज नथिंग, दिस इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, राइट। तो ये मूव करता है, अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए, अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड होगा, इधर होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। अगर इसी में अगर पॉजिटिव जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो अगर लेट सपोज ये किसी वजह से निगेटिव की तरफ मूव करे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ना निगेटिव की तरफ तब भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव जो है निगेटिव की तरफ करे तभी नेगेटिव, या निगेटिव अपोजिट हो देन डिफ्लेक्शन नेगेटिव। अपोजिट, ओके, राइट, निगेटिव हो। ये कंसेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। What I am saying that
these are myocardial cells. Here resting potential is minus 90 millivolt, right? Means inside negatively charged, right? Here we are giving stimulus, Yes, sir. means positive charge. So what will happen that first this cell will depolarize. Yes, sir. I talked before. Yes, sir. So what will happen that positive charge means depolarization will move this side, Yes. means that positive charge is moving this side. So positive charge is moving towards here. See that there positive charge. Yes. It means that deflection will be positive. So अगर ये galvanometer है तो इस ऐसा deflection होता है तो positive होता है और ऐसे deflection होता है तो negative होता है. तो अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? Positive. पॉजिटिव होगा. अगर निगेटिव की तरफ जा रहा है Positive. डिफ्लेक्शन Positive होगा. लेकिन अगर आप पहली बात अगर पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहा है डिफ्लेक्शन Negative होगा. और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है डिफ्लेक्शन Negative होगा. ये याद रखना. ओके सर. क्लियर और नॉट? Yes, sir. एकदम सीरियस हो. ये जो है ये दिखाया जाता है ये जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर के रूप में दिखाया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी वाला वेक्टर के रूप में दिखाया जाता है. तो ये जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है. ये दिखा रहा है ये ऐसे दिखाया जाता है. लेकिन ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतना बड़ा करके दिखाया जाता है. राइट. अब लेट अस सपोज दैट दो मायोकार्डियल टिश्यू लिया गया. राइट. एक का थिकनेस ये है, एक का थिकनेस ये है और दूसरे का थिकनेस ये है. दूसरे का थिकनेस ये है, इसका थिकनेस ये है, दूसरे का थिकनेस ये है. भीतर में नेगेटिव पॉजिटिव जो बनाना है बनाओ. व्हाट आई वांट टू से हियर, व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर. सी सो व्हाट विल हैपन दैट हियर क्योंकि जब ये थिक ज्यादा होगा तो इसका जो है वेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. राइट. ये थिन है इसका भी कम स्ट्रॉन्ग. तो 3 पॉइंट क्लियर. अगर पॉजिटिव की तरफ मूव करें डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ मूव करें डिफ्लेक्शन Positive. पॉजिटिव निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन निगेटिव पॉजिटिव की तरफ करें डिफ्लेक्शन नेगेटिव. अगर मायोकार्डियल सेल्स का जितना थिकनेस ज़्यादा होगा उसका वेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा. क्लियर नॉट क्लियर? अप टू दिस क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट करने के बाद कि हार्ट में हो क्या रहा है. व्हाट इज हैपनिंग. ये 3-4 पॉइंट क्लियर हो गया ना एकदम. अब ये हो क्या रहा है. See, let us suppose that this is human heart, right? ये बीच में जो है फाइब्रस सेप्टम होता है, राइट. दिस साइड राइट एरिकल, दिस साइड लेफ्ट एरिकल, हियर अब हमने बताया था एक यहाँ पर क्या होता है ऐसे नोड. यस सर. See here, there is ऐसे नोड here. यस. ऐसे नोड here. ये पूरा मायोकार्डियल सेल्स है. ताकि auricular मायोकार्डियल सेल्स, ये ventricular मायोकार्डियल सेल्स, auricular मायोकार्डियल सेल, ventricular माइक्रोडेल सर. right? So what is happening? See, यहाँ से जो है ऐसे नोड से जो है वो प्रोपेगेट करता है क्या? वेक्टर, इलेक्ट्रिकल वेक्टर प्रोपेगेट करता है. राइट. ये प्रोपेगेट करते हुए जो है ये क्योंकि ये फाइब्रस नहीं होता है अल्कल के बीच में.
सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसको जो मूव कर सकता है, तो ये प्रोपगेट करता है, इधर भी जाता है, इधर ये पूरा प्रोपगेट करता है। राइट राइट, यहाँ आके ये रुक जाता है, वेंट्रिकुलर में ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बीच में क्योंकि ये लेयर फाइब्रस लेयर है, यस सर, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इससे ये डायरेक्ट यहाँ नहीं मूव कर सकता। इसको मूव करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एवी नोट, that structure here, that is AV node, यस सर, that structure here, that is AV node। यहाँ AV node है, जो AV node जो है वो यहाँ move किया है, और ये प्रिंटेड फाइबर को यहाँ दिया है, यस सर, प्रिंटेड ब्रांचेज। So, see, what I want to say here, first of all, here due to firing start in SA node, यस, and it will move in which direction? Here, left side and down side. इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड होता है। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि कभी भी वेक्टर अगर एक ही समय हो तो वो सम हो जाता है, यस, यस सर, सम हो जाता है। अब इतना ये कठिन दिखाओगे तो नहीं काम चलेगा, ये सम हो जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग दैट यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग दैट, अगर लेट अस सपोज दैट ये इसका जो सम जो है, इसका सम जो है ये आएगा, ओवरऑल सम जो है वो ये आएगा, ओवरऑल सम जो ये आएगा, राइट। अब सी जो ऑरिकल का जो मायोकार्डियल मसल है वो थीन होता है, राइट। थीन होने की वजह से यहाँ इसका मॉडरेट एक्टिविटी होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो मॉडरेट होता है, फास्ट नहीं होता। सो सी हियर दैट ये जो है इस डायरेक्शन में इसका होता है। तो ये हमने पहला पॉइंट आप लोग बताया कि पहला एक्टिविटी फर्स्ट ये क्या है, ऑरिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, अच्छा, अब देखो ये दूसरा एक्टिविटी यहाँ होता है, ये आके यहाँ कहीं नहीं मूव करता है, ये क्या करता है, एवी, एबी नोड है, एबी नोड को टच करता है, राइट। एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब डीपोलराइजेशन जो है एबी नोड में होता है, राइट। बट एबी नोड में जो एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो बहुत ही स्लो होता है, जिसके वजह से इसका इम्पैक्ट तुमको जो ईसीजी का मशीन है उसको पता नहीं, इसलिए इसको जो है ऐसे दिखाया जाता है, व्हाट करके दिखाते हैं, राइट। तो एरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वेरी स्लो, राइट। यस सर, एंड दैट्स व्हाई मशीन कैन नॉट रीड आउट, राइट। अभी दिखाएंगे उसको कैसे उसके बाद इसका मूवमेंट देखो इस डायरेक्शन में होता है। ये सब क्या है, दे हियर सी बंडल ऑफ वेव्स एंड देयर इज 25 Hz, बंडल ऑफ वेव्स देयर इज 25 Hz, यस सर, राइट। सो डीपोलराइजेशन करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, और सबसे पहले यहाँ पर देखो डीपोलराइजेशन जो है 3 पार्ट में होता है वेंट्रिकुलर में, इसको बोलते हैं सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, ये जो ये बेस है ये वेंट्रिकुलर बेस और ये वेंट्रिकुलर एपेक्स, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वेंट्रिकुलर बेस ये एंड वेंट्रिकुलर एपेक्स। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, इसके थ्रू जो मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट होता है। सबसे पहले जो है आता है
ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम का एरिया है, वेंट्रिकुलर सेप्टम का एरिया है, वहाँ ये जो है डिपोलाइज है। और यहाँ डिपोलाइजेशन का डायरेक्शन क्या होता है? डिपोलाइजेशन का डायरेक्शन जो है वो ऐसे होता है, ये डायरेक्शन ऐसे होता है। और रिजल्टेंट जब निकालोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? Upward right. Upper side like this. Right. Right? Yes. Upper side like this. कई बार बताइए, don't worry. Upper side like this. तो ये ठीक क्या है? अभी देखो ये फिर से समझने की कोशिश करो. Let us suppose that this is ventricle. ये ऐसे नोट है, एवी नोट, राइट? एवी नोट के बाद see here what is happening, electric current is moving here, depolarization wave is moving here, right? This myocardial muscle here, the myocardial muscle is somewhat like insulated. So no electrical activity at the polarization of the increase. First electrical activity observed here, this part, this is known as septum, ventricular septum. Here. This is myocardial Septum. right? So what will happen that, see, electric current is moving from here and it will come here and first hit here and then go back, right? So the direction of this will be like this. So when you will see the resultant of this will like this. Here septum ventricle, the process is very fast. Very fast. Very fast and strong. Right? So you see that the direction will be like this. Upward and yes, sir. So I described here three vector. First vector here, that auricular ventricle, that is happening in auricle. Then second here, that at AV node, and third here at Septum. ventricular Septum. Fourth activity happening here at the, see here, this one. Purkinje forms. This is apical part of the ventricle, and this is this is basal part of ventricle, and this is apical part. Yes. Right? So what will happen that? See here, again bigger muscle. So ventricle, here see that again the depolarization factor is moving in this direction, right? And एक बात याद रखना कि इसका जो थिकनेस होता है उससे 3 गुना थिकनेस इस लेफ्ट साइड का होता है वेंट्रिकल का। इसीलिए जब इसका ओवरऑल रिजल्टेंट देखोगे, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। राइट? तो दिस इज Res- apical
ventricular depolarizing current. Right? And then what happened that fifth one, that here see, here there is the movement. Here also that is basal part of the heart. Right? Basal part of the heart. So here the vector direction is. So just remember, इसको वेक्टर का डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे थे तुम लोगों को कि 5 जानना जरूरी है। एक्टिविटी को ज़्यादा हमने नहीं बताया कैसे क्या होता है, क्योंकि मेडिकल में ये पढ़ाया जाता है। तुम लोग को जस्ट PQRST को समझना है, उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सी अब जरा सा इसको बताना आपको। अब आप बताओ एवरिकल में वेक्टर का डायरेक्शन दिस इज लाइक दिस। Yes, sir. Right? This is one. Then here, this is two. Right? ये what है एक्टिविटी शो नहीं करता। Then here, see here, that ventricle Septum. base का है। This is three, right? And here. This is 4, right? And here, this is 5. Direction? 5. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Right? So, first electrical event क्या है? First one. First electrical event क्या है? First that electrical event. Auricle. फर्स्ट क्या है बोलो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट क्या है? ऐसा ना। That is the first actual depolarization. Yes, sir. फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इवेंट यही है। Yes, sir. राइट? दूसरा बनाया दूसरा AV इलेक्ट्रिकल इवेंट बताओ क्या है? AV node. AV node depolarization. AV node, see here, second. This is AV node depolarization. Right? This is small. AV node depolarization, this is small. Okay? Which cannot be recognized by your machine. This is very small. That's why which cannot be recognized by our machine. Third activity क्या है? बोलो जल्दी। Septum. Septum. That is ventricular. Septum. See here. This is ventricular septal Depolarization. Yes, sir. Ventricular septal depolarization. That third activity is that ventricular septal depolarization. Here also electrical vector generated small but fast
and rightward and upward. You see that? Electrical, here also, electrical vertical is small, fast, and move where? Move where? Upward. Upward. Yes, sir. Upward, right. Upward. And Right. right, left. It is moving upward. Right? और ये इधर ये राइट बोलता है. Yes, sir. अपवर्ड एंड राइट. देखो ये इवेंट याद रखना, हम इसको पूरा समझाने का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. Yes, sir. जस्ट इसको तुम पीक्यू आर की समझ जाओ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं. चौथा नंबर जो है, चौथा इवेंट क्या है? Sir, ventricular apex. Ventricular मेजर पार्ट ऑफ ventricular deposit. That is, this is basal part, this is Apex. apical part, Yes, sir. और ये apical part सबसे ज़्यादा होता है. That's why ये कहा जाता है Ventricular. major part of ventricular right. और 5वां नंबर क्या है? 5 नंबर ये देखो बेसल पार्ट पर है. Yes, sir. इसको क्या बोलोगे? दैट इज वो कहोगे बेसल वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन. बेसल वेंट्रिकल. चलो आप लोग बताओ. हियर आई एम शोइंग 5 depolarization activity in heart. First happening in the atrial part. Yes, sir. See the direction of vector. That is downside and left side. Right? This is somewhat moderate. This is somewhat moderate in action. Right? And that first is known as atrial depolarization. Right? See here, second one. Second. This is here what is happening, that AB node depolarization. Auricular ventricular node depolarization. So AB node depolarization, this is very small, which cannot be recognized by our machine. So machine में वो नहीं दिखाएगा. Then here see, where is third one? This is third one. Yes, sir. So ये this ventricular part है. Ventricular septum depolarization. This is also very small, because small part में होता है, right? This is fast. And this is upward and Right. Then fourth one. Major part. This is major part. That is major part. This is apical part. Major part ज़्यादा होता है. इसका resultant ये है, right? So this is major part of ventricular depolarization. And fifth one, this Basal. here, this is basal ventricular depolarization. अब एक concept आपको बताता हूँ. Just remember that वो concept क्या है. तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये मामूल मन है. साइंस है, समझने की कोशिश करेंगे. से जब इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इसीलिए मशीन में प्रेगनेंसी गैलवेनिक होते हैं. So simple to understand this. So what is happening that here see that here is galvanic, right? Right? और
उसके बाद एक रोलर है, दिस इज रोलर, बड़ा सा ये रोलर है, और इस रोलर में ये जो है वो पेपर लिपटा हुआ है, राइट। रोलर में पेपर जो है वो लिपटा हुआ है, राइट। ये जो है यहाँ पर उसका एक स्टैंड है, राइट। और ये रोलर है, जहाँ ये मूव करेगा, इसके मूवमेंट का डायरेक्शन ये, राइट। और ये तुम्हारा मिडिल है, इस पर तुमने स्याही दे दिया यहाँ, सो दैट वो बता पाए कि क्या है, राइट। और ये रोलर जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। और इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में देखो यहाँ, राइट। ये खड़ा है हम लोग यहाँ, ये दो पॉइंट हुए, यहाँ अटैच कर लो, यहाँ अटैच कर लो, यहाँ अटैच कर लो, सेम, राइट। तो यहाँ अटैच मतलब मान लो कि लेटर सपोर्ट है, यहाँ अटैच कर दिया गया पॉइंट को, यहाँ से और यहाँ अटैच कर दिया है, और दूसरा पार्ट यहाँ अटैच करो या यहाँ अटैच करो, बात बराबर होगा। तो ये मान लो कि देखो हमने यहाँ अटैच कर दिया, राइट, यहाँ अटैच कर दिया। ये जो है तुम्हारा यहाँ जो है ये निगेटिव वाला है, और ये जो है यहाँ वाला ये पॉजिटिव वाला। अब तुम लोग ध्यान से देखना और बता, राइट। ये जो है ये मूव कर रहा है, राइट। तो मूव जब करेगा तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज में होगा। तो रेस्टिंग स्टेज में होगा, इट विल बी लाइक दिस स्टेज, मतलब रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या हुआ, ये मूव किया गया, ये मूव ही नहीं करेगा, राइट। इस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूवमेंट निगेटिव वाला कंसेप्ट दिया हुआ, राइट। तो ये जो है तुम्हारा ऐसे रहेगा, राइट। अब सोचो ऐसे नोड जब जो है इसका डायरेक्शन क्या है, ये डाउनवर्ड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यस, तो पॉजिटिव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, सो डिफ्लेक्शन विल बी लाइक पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड, यहाँ Yes. देखो पॉजिटिव साइड, Yes. राइट। डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस, राइट। See, here the speed is not so fast. यस, The speed is moderate. यस, Speed is Moderate. moderate. So ऐसे डिफ्लेक्शन ऐसे होता है. So what is happening that, see, the polarization of AB node will be like this. Because this is moderate. This is slow process. So धीरे से ऐसे मुड़ा, तो इट विल बी, देखो ऐसे मूव कर रहा है, थोड़ा सोचने को, तो ये फर्स्ट जो है ऐसे ये होता है, क्लियर। सो दिस शो अबाउट व्हाट, दिस शो अबाउट व्हाट, फर्स्ट इवेंट, दिस इज फर्स्ट इवेंट, P, दैट इज एट्रियल Atrial depolarization, right? So this known as P, यस, right? P. अब देखो उसके बाद यहाँ क्या है, दूसरा नंबर पर एविनो, एविनो, क्या इसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताया जा सकता है, नो, नहीं बताया जा सकता है। तो दिस दैट ये रखता है ऐसे क्यू, स्ट्रेट लाइन रहेगा, Yes. रेस्टिंग स्टेज। देन थर्ड वन CSC दैट हियर सेप्टम, Yes. दिस डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, यस, and नेगेटिव, this here this is positive Positive. charge, right? यस, सेप्टम यहाँ है, right? This is very fast process, यस, but power is slow. Yes. ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, power is slow. So tick 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 tick. तो here see here here see that positive is moving Negative. toward where? नेगेटिव, Negative. So direction will be नेगेटिव, negative. So it will move like this. Yes, yes. This. So see here, it will be move like this and that. यस, This will move like this and this. And clear or not? So see, this is ventricular septum. And after that, see here, ये पार्ट, ये जो तुमको जो ventricular Apical. का मेजर पार्ट है,
Apical. वो स्ट्रॉन्ग होता है, Yes. फास्ट भी होता है, Yes. राइट। और उसका डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में Downward. ऐसे डायरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग भी है, फास्ट भी है। Yes, sir. और ये पॉजिटिव चार्ज, Yes, sir. so positive is moving towards Positive. right? Yes, sir. Right? The process will be fast, Yes. but strong. So see here, what will happen that this will move like this. Backward. Yes. Yes. So P, this is Q, this is R. This will move like this. इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। This will move like this and then come back. Yes, sir. Right? Clear? Q R ये हुआ। अब यहाँ पर जब आ जाता है ये, उसके बाद एक अनदर ये होता है यहाँ, Yes, sir. ये देख रही हो ना, Basal. ये बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन जो होता Upper है, होता है. ये तुमको फास्ट तो होता है, लेकिन इस दोनों के कॉम्बिनेशन में फास्ट तो होता है। देखो इसका रिजल्टेंट जो है, ये इसका रिजल्टेंट एक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? Offer. पॉजिटिव टुवर्ड वेयर? Negative. Positive towards negative. Yes. So what will happen that? Graph will be Deflection negative. will be what? Negative. So deflection will be what? Neg- Just tell me. No, Deflection downward. will be here like this. Yes, sir. Yes, sir. Right? And then resting state. अब ये देखो, ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो है वो डीपोलराइज हो गया, और जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाता है तो इट विल बी एट रेस्टिंग स्टेज, Yes, sir. Resting. राइट? P Q R S, पूरा का पूरा रेस्टिंग स्टेज का। अब यहाँ क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर जब डीपोलराइज हो जाए तो डीपोलराइज होने के बाद फिर क्या रीपोलराइजेशन प्रोसेस होगा ना? Yes, sir. रिपोलराइजेशन प्रोसेस कैसे होगा? पोटेशियम लगातार बाहर निकल रहा है, पोटेशियम लगातार बाहर निकल रहा है, सो रिपोलराइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद रिपोलराइजेशन प्रोसेस होता है, वो देखो उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये वेंट्रिकल जो है क्या हो गया? डीपोलराइज हो गया। जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो है डीपोलराइज हो जाएगा, जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाएगा, then what will happen? There is no way. That's why here see there is a resting stage, और डिपोलराइजेशन होने के बाद देन अगेन ये रिपोलराइज होता है। रिपोलराइज क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल रहा होता है, और पोटेशियम जब निकलेगा तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज जो है भीतर बढ़ेगा, रिपोलराइज हो। लेकिन यहाँ देखने का अजीब सारी बात है, रिपोलराइजेशन जब होता है ना तो रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन जो है ये देखो यहाँ से होता है, इस साइड से। हालांकि पहले जो डिपोलराइज होता है वही रिपोलराइज पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिपोलराइजेशन इधर पहले होना शुरू होता है। क्यों होता है? बाहर से पहले होना शुरू होता है। अब ये क्यों होता है? तो देखो जब डिपोलराइज हुआ तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे जब स्क्वीज करेगा तो ये भीतर के पार्ट में जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, अभी आर्टरी मूव कर रहा है, ये दब जाता है, और ये जब दबता है ना तो ये इधर ब्लड का फ्लो रहता है। इसीलिए सबसे पहले बाहर का सेल जो है वो रिपोलराइजेशन होता है। तो रिपोलराइज यहाँ का हुआ, और ये जो है ऐसे इस डायरेक्शन में ये लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। ये देखो ऐसे मूव करना शुरू करता है रिपोलराइजेशन होने के बाद, राइट? एंड दैट इज दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो सी हियर रिपोलराइजेशन क्या है? ये जो है रिपोलराइजेशन हुआ तो इसका डायरेक्शन जो है ऐसे हो गया, वन और डायरेक्शन जो है रिपोलराइजेशन का ऐसे, एंड दिस इज नेगेटिव। So the process is slow, Negative charge to negative. but negative is moving towards Negative. So deflection will be what? Positive. Positive direction, but the process will be slow. Yes, slow. So see here, this will be like this.
यस सर right? And this RST right? So इसको बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है ST waves, ST lines बोला जाता है। इसको बोला जाता है यहाँ PR line, ये PR line है जो रेस्टिंग में PR line इसको बोला जाता है, राइट? बिकॉज कभी कभी Q जो है वो नहीं दिखाता है, यस राइट? सर तो इस तरह से हमने आज से PQRST का एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के विषय में एक वॉलीबॉल और इसे कंटिन्यूसली होते रहता है हमने आपको बताया। किसी को क्वेश्चन है क्या? स्टॉप कर दो।